Webinar is being organized by the Professor Rajendra Singh Smith Sansthan. This this trust was incorporated in 2018 in memory of Professor Rajendra Singh. These is supporting patriotic activities among youth, spreading education for good human being, science popularization among youth, encouraging science research for rural Bharat, promoting science application for masses. This is the website of the organization, and this is the email, this is the phone number. Anybody interested to know more about these organization activities or anything can contact on these numbers. This program is sponsored by Rail EduTech Private Limited. The main object of the company is to promote courses for employment and upskilling, promotion of railway courses for graduate engineers and diploma engineers, offering big data, cloud computing and cyber security courses from 1st April 2023. Promoting industrial automation courses. This organization is also promoting entrepreneurship programs. This is the website of the organization. This is the email address of the organization, and this is the phone number. Anybody interested to know more about it can contact on these numbers. This program is also supported by Human Unity Movement. This organization is helping the needy people from all walks of life, protecting child and childhood, save environment, help protecting rights of the people, awareness of the legal literacy, and counseling for marriage dispute and harassment. This is the email address of the organization. This is the phone number. Anybody interested can contact all these numbers. Today's program is being delivered by Mr. Viren Nath Grover. वीरेन जी ने IIT कानपुर से 1971 में ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है, and he has worked with organizations like Modi Steel, NISST, UNDP. He has been chief engineer and consultant with a multinational company called Chorus. He has been also professor and HOD in an engineering college. Published 2 books on road safety and 2 books on career in engineering. And today's webinar will be delivered by Virenji. He has delivered many webinars on this subject, so everybody will get benefited with this. As ever, all the people who are attending this webinar will be awarded one certificate of attendance and one motivational book, We Can, which is written by Commander V.K. Jetli. So all those who are attending should fulfill the feedback form about today's webinar, and this feedback form will be available either on your group or your email. So please fulfill your feedback form and get this book and certificate. So I am handing over to the Mr. Viren Grover ji to take it further. Viren ji. धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अजय जी को और रेलटेक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को धन्यवाद करना चाहूँगा इस अवसर देने के लिए। और हम चर्चा प्रारंभ करते हैं विषय के संबंध में कि आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है किसी भी समाज के लिए, देश के लिए और व्यक्ति के लिए। देश इस समय बहुत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आप अगर चर्चा करें तो एक मिनट, स्क्रीन शेयर। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, हमने आपको पोस्ट बना दिया है। ठीक है जी। अगर हम चर्चा करें तो डिफेंस के क्षेत्र में, अन्न उत्पादन में और बहुत सारे उपयोगी वस्तुओं में हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप में जहाँ तक कैरियर की बात होती है तो थोड़ी समस्या रहती है लोगों को कि आखिर क्या किया जाए। और इसलिए कैरियर के बारे में आत्मनिर्भर बनना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। विशेषकर जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, सबके लिए ये आवश्यक है। इसके लिए हमें पहले
जानना पड़ेगा कि पर्पस क्या है। कैरियर का संबंध लोगों ने ये मान लिया है, ऐसी एक परिकल्पना बन गई है कि कैरियर का मतलब है लैपटॉप और टाई, खासकर पढ़े लिखे लोगों के लिए। दूसरा, हमारे सामने दो उद्देश्य रहते हैं, एक तो होता है ड्रीम और एक होता है डिजायर्स। जहां तक डिजायर्स की बात है, जिसे कामना कहते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। वी कैन डिजायर नंबर ऑफ थिंग्स। लेकिन जब ड्रीम की बात आती है तो हमें एक लक्ष्य बना के चलना पड़ता है। उस सपने को अगर हम पूरा कर लेते हैं तो हम कहते हैं सपना पूरा हुआ। जब तक हम सपना नहीं लेंगे किसी बात का, किसी लक्ष्य का, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब सपने की पूर्ति के लिए 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं, मनसा वाचा कर्मणा। हमारे देश में जब भी कोई पंडित पूजा करवाते हैं तो उसमें आप ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं मनसा वाचा कर्मणा शब्द आता होगा। अब ये मनसा वाचा कर्मणा तीनों का मतलब क्या है? मतलब मन से हमने किसी संकल्प को ग्रहण करना, वचनों से व्यक्त करना और कर्म के द्वारा उसे प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना। और एक ग्रंथ है हमारा योग वशिष्ठ, जो भगवान राम ने प्रश्न पूछे और वशिष्ठ मुनि ने उनको उत्तर दिए। और उसमें जो है ऐसा आता है कि व्यक्ति कोई भी संकल्प करे, कोई भी कामना करे, सपना ले, वो उसका पूरा हो सकता है। लेकिन कितने लोग जानते हैं इस ग्रंथ के बारे में, मुझे नहीं पता, लोगों ने नाम भी शायद न सुना हो। तो अब हम आगे आते हैं कि कैरियर एक बहुत हाई साउंडिंग शब्द है, लेकिन लिटरली इसका मतलब, शाब्दिक अर्थ इसका जो है आजीविका है। और अगर कोई ये आजीविका नहीं कमा सकता तो उसको हम कहते हैं बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड। अब अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब है कि जो हमारी क्षमता है, जो हमारी कमाने की, उसको अगर हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे किसी कारण से, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जो डिजायरेबल नहीं है। और इसका मुख्य कारण जो है अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट का, कि हम प्लान नहीं करते और इसी कारण एक भेड़चाल की तरह हम आगे बढ़ते रहते हैं कि जिस तरह से एक भेड़ के पीछे बाकी भेड़ें चलने लगती हैं, वही काम हम कर रहे हैं समाज में। और परिणाम ये होता है कि जिस तरह से भेड़ गिरती है आगे जाकर, सोचती है मैं क्यों आ रही हूँ इस रास्ते पर, वही हमको भी सोचना पड़ता है कि हम क्यों कर रहे हैं। अब एक ये समाचार हम सब पढ़ते होंगे, अक्सर बेरोजगारी के समाचार आते हैं प्रतिशत के रूप में, कितने प्रतिशत बेरोजगारी है। ये 29 जनवरी 22 का एक समाचार है जो कहता है कि एजुकेटेड, शिक्षित वर्ग ज्यादा बेरोजगार है, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है उनके लिए तो सरकार कोशिश करती है कि निवेश के द्वारा प्रोजेक्ट बने या लोगों को मनरेगा के माध्यम से कार्य मिले। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए समस्या होती है कि वो दूसरों पर निर्भर करते हैं, जो ये निर्भरता आवश्यक नहीं है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करना, ह्यूमन रिसोर्स बैंक का डेटा मेंटेन करना, प्लान करना, बजट करना, योजनाएं बनाना, सुविधाएं देना। अब मनरेगा में तो 2005 से सरकार ने गारंटी दी हुई है रोजगार की, कि कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देते हैं। तो क्या ये सबके लिए आवश्यक है? मेरे ख्याल में नहीं। अब मुद्रा लोन, स्टार्टअप, स्टैंड अप, स्किल डेवलपमेंट, ये सब बातें जो सरकार योजना बनाती है, इसका मकसद है लोगों को मदद करना। लेकिन कुछ तो हमारे सिस्टम में खामियां हो सकती हैं कि हमको कुछ दिक्कतें आती हैं सुविधाओं को प्राप्त करने में, और दूसरा हम जागरूक नहीं होते इन चीजों के बारे में कि हम इनका फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए सिडबी के मैं कुछ एग्जांपल दूंगा अभी आपको। और पीएम विश्वकर्मा एक नई योजना जो है अभी आई है इस बजट में। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग जरूरतमंद हैं। जहां तक नंबर्स की बात अगर हम करें, तो अगर 7% की बात की जाए कि 7% लोग बेरोजगार हैं, तो संख्या की दृष्टि से उसके लोग 3 करोड़ के आसपास कहते हैं, जो कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और इतने लोगों का बेरोजगार होना, एक व्यक्ति भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। और 3 करोड़ अगर बेरोजगार हैं देश के अंदर,
तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो कैसे हो पाएगा? ये एक हमारा क्या कहना चाहिए, डिविडेंड इसे कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। युवा शक्ति के रूप में भारत बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास युवा अधिक हैं, लेकिन उनको अगर सही दिशा नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो एक खतरा भी बन सकता है समाज के लिए। और इस चीज को रोकने के लिए इसको बहुत जिम्मेदारी से हमें देखना पड़ेगा। लेकिन प्रतिवर्ष अगर 5 करोड़ लोग कहते हैं कि 5 करोड़ लोग हमारे नए तैयार हो जाते हैं, पिछले तो छोड़िए, लेकिन 5 करोड़ लोग अगर हर साल काम के लिए तैयार हो जाते हैं नई पीढ़ी के, तो कितना कठिन काम है ये। और इसमें भी 1/3 नहीं, मेरे ख्याल से तो शायद 3/4 लोगों को स्वरोजगार में जाना पड़ता है, और जिनको नौकरी मिलती है उनके सिर पर भी खतरे की तलवार लटकती है, कि कभी भी किसी को नौकरी से निकाला जा सकता है। और कोरोना काल में तो ये बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे वरिष्ठ लोगों को, जिनके 25-30 साल की नौकरी थी, उनको भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब समस्या ये आती है कि व्यक्ति जो नौकरी के लिए आदी हो जाता है, वो नौकरी के बाहर सोचता नहीं है कुछ, और जितना उच्च पद पर होता है उतना उसको नौकरी मिलना और कठिन हो जाता है। तो इसलिए आवश्यक ये है कि हर व्यक्ति अपने दिमाग में स्वरोजगार का विकल्प रखे। जरूरी नहीं है कि मुसीबत में उधर मुड़े, अगर मौका लगे तो पहले भी पाला बदला जा सकता है। लेकिन स्वरोजगार के लिए अकेले नहीं, एक साथी जरूरी है, कम से कम एक साथी, 2 हो 3 हो और अच्छा है। इसकी चर्चा हम कुछ घटनाओं के साथ करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं सरकार के क्या प्रयास हैं। अभी हाल में एक संस्था है इन्वेस्ट इंडिया, जो जितना हमारे देश में इस समय तरक्की हो रही है, विदेशी निवेश आ रहा है, स्टार्टअप में प्रगति हो रही है, इसकी पृष्ठभूमि में एक संस्था जो काम कर रही है बहुत गुप्त रूप से, उसका नाम है इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया को अभी एक नया लक्ष्य दिया गया है कि स्वदेश दर्शन को प्रमोट किया जाए, टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। एक तरफ तो हमने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स डेवलप किए, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, या इस तरह के काशी विश्वनाथ मंदिर की जो कॉरिडोर बना है, या उज्जैन का महाकाल का मंदिर कॉरिडोर, ये सब प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि हमारा स्वदेश दर्शन का, टूरिज्म का विस्तार हो। इसमें भी बहुत सारी नौकरियां पैदा होती हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो आंकड़े दिए हैं अभी इन्वेस्ट इंडिया ने, कि जनवरी 31 तक 76 प्रोजेक्ट स्वदेश दर्शन के प्रारंभ हुए हैं, और 45 प्रसाद स्कीम के। लेकिन ये क्या है, इनका जिनकी रुचि हो वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये कि एक संस्था है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उनका एक समाचार है, उनका एक स्टेटमेंट है, उनका प्रयास है कि हर घर से एक उद्यमी होना चाहिए। अब सोचिए कि एक घर से अगर एक उद्यमी होगा तो कम से कम 4-5 को तो नौकरी देगा, काम पे लगाएगा। और ये अगर सफल होती है योजना, इसका मतलब कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। और ये बहुत आवश्यक है। अगर हमारी परिकल्पना 3-5 ट्रिलियन इकोनॉमी की है, उसके लिए सरकार बहुत काम कर रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज कर रही है, विदेशी निवेश को। पीएलआई जो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, मतलब उद्योग में कुछ वर्गों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो अपने काम का विस्तार करें। दूसरा, जीडीपी के टारगेट जो हैं, ये भी एक इनडायरेक्ट प्रयास है जिससे कि नौकरियां बढ़ें। अब आप देखिए, एक योजना है सरकार की, मिशन स्वावलंबन, और इस योजना में सिडबी जो एक बैंक है, सरकारी बैंक, और उषा एक कंपनी है जो सिलाई मशीन बनाती है, इनके सहयोग से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है स्वावलंबन का, जिसके अंतर्गत उन्होंने सिलाई स्कूल खोले हैं गांवों में। वो लोन देते हैं, वो सुविधा देते हैं, मार्केटिंग की और बहुत सारी बातों की। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के कामों से जो रोजगार बढ़ रहा है, उसके आंकड़े हमें सामने ना आते हों, लेकिन काम हो रहा है बहुत। तो
अब आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है? लाइवलीहुड मतलब आजीविका के लिए हमें भीख ना मांगनी पड़े, किसी के ऊपर निर्भर न कहना पड़े, निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर बने। और इसके लिए सबसे पहली जरूरत है कि हमें पता होना चाहिए कि संख्या क्या है, कौन लोग हैं, वो शहरी हैं या ग्रामीण हैं, कर्मकार हैं, शिक्षित हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बिगिनर्स हैं या अनुभवी हैं। अनुभवी मैंने आपसे अभी जिक्र किया था। और ये आवश्यक नहीं कि सरकार की सभी योजनाओं में सफलता मिलती हो। एक योजना सरकार ने शुरू की थी, नेशनल एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट मिशन, नीम। अब इस योजना का एक समाचार छपा था पुराना, वो कहता है कि 99% लोगों को रोजगार नहीं मिला। मतलब अगर 1% को मिल भी गया तो योजना का विशेष लाभ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने उसका फायदा नहीं उठाया, या उसको कैसे फायदा उठाया जाए इस जानकारी लोगों को नहीं थी। ये समाचार है। नीम में प्रशिक्षित 99% नौजवानों को नौकरी नहीं मिली। अब सरकार तो केवल इनडायरेक्ट काम कर सकती है। आप ही सोचिए, डायरेक्टली वो हर व्यक्ति को एक व्यक्ति को पकड़ के नौकरी देगी, काम पे लगाएगी, ये संभव नहीं। जैसा कि पीछे हुआ था 2019 में, सरकार ने कंपनी कर में कटौती की तो लक्ष्यता रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब इसमें आवश्यकता है पब्लिक पार्टिसिपेशन की। जब तक जन सहयोग नहीं होगा तो बात आगे नहीं बढ़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण है सोसाइटी में बिजनेस और इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और इन सबके साथ प्रत्येक व्यक्ति, खास करके शिक्षित व्यक्ति को अपना बोझ स्वयं उठाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और वो शुरू होता है शिक्षा से। क्या पढ़ें, क्या न पढ़ें, कौन सा विषय चुनें। तो यहां पर आप बीए करें, बीटेक करें, बीकॉम करें, बीबीए करें, लेकिन लक्ष्य क्या बन गया है कि ल्यूक्रेटिव जॉब होना चाहिए। पैसा कहाँ ज्यादा मिलेगा, इससे हटके हमारा शिक्षा में ध्यान होना चाहिए कि ज्ञान कहाँ मिलेगा। अगर ज्ञान आपके पास है और आप आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं कैरियर के मामले में, तो कुछ ना कुछ काम तो आप बना ही लेंगे। हम सिर्फ चक्कर में पड़ते हैं, ल्यूक्रेटिव जॉब के चक्कर में। पैसा कहाँ मिलेगा, पैकेज कहाँ मिलेगा। और अगर आप समाचार देखते हो कि कुछ लोगों को, मतलब बहुत कम संख्या है, किसी को 1 करोड़, 1.5 करोड़, यहाँ तक 4 करोड़ तक का पैकेज मिलना शुरू हो गया है। लेकिन ऐसे कितने लोग होते हैं? बहुत कम संख्या होती है। और अगर लोग प्रभावित होकर उससे सोचे कि मैं भी यही कोर्स कर लूं, इसी संस्थान में चला जाऊं, तो संभव नहीं है। ये बात हमें गांठ बांधनी पड़ेगी कि हर विषय में संभावनाएं हैं। विषय आप कोई भी लीजिए, वो चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या सिविल इंजीनियरिंग, हर विषय में दर्जनों शाखाएं, उपशाखाएं होती हैं स्पेशलाइजेशन की। जैसे साइकोलॉजी में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो मनोविज्ञान के बहुत सारे काम हैं, जो न केवल औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, इस तरह के, और लोगों का जो उपचार करते हैं वो भी उसमें आता है। तो इस तरह से सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग के 50 काम हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग कहने से काम नहीं चलेगा। तो कोई भी विषय अगर हम जाते हैं तो उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जानकारी होने के बाद में क्या हम हर विषय के लिए, क्या हम हर क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं? मतलब आपसे कोई कहे कि साहब आप रिसर्च में चले जाइए, आप डिजाइन इंजीनियर बन जाइए, आप डिफेंस में चले जाइए, सेना में चले जाइए, आप स्पोर्ट्समैन बन जाइए, आप गायक बन जाइए। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। हर काम के लिए कुछ ट्रेड्स एंड कैपेबिलिटीज होती हैं, जिसे हम क्षमता, अक्षमता, दैट इज क्षमता इज स्ट्रेंथ, अक्षमता इज वीकनेस। और ये हमारे होने के बाद हमें अवसरों का तलाश करना आना चाहिए और उस मौके का फायदा उठाना भी आना चाहिए। अवसर तो हर व्यक्ति के सामने आते हैं, लेकिन बहुत से व्यक्ति उसका फायदा नहीं उठा पाते। दूसरा, चौथा, अवरोध यानी मुश्किलें। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी कोई न कोई मुश्किल आती है। उनको कैसे हमने मुकाबला करना है, यह भी आवश्यक है।
और तीसरी बात, अगर हम उद्यमी बनना चाहते हैं, स्वरोजगार में आगे जाना चाहते हैं, तो हमें विश्वसनीय मित्रता की आवश्यकता है। कम से कम हमारा एक साथी होना चाहिए। अकेले कभी भी हम स्वरोजगार में सफल नहीं हो सकते। और इसी से हम 1 और 1 11 का जो गणित का सिद्धांत है उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। 1 और 1 11 नहीं, 2 होते हैं। लेकिन ये चाहे एक मुहावरा है, परंतु इसका क्या उपयोगिता है ये तो वही जानता है जब 2 व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। अब डिग्री जो है, मान लीजिए हमने इंजीनियरिंग की डिग्री की, तो वो डिजाइन कर सकता है, यूटिलिटीज में जा सकता है, कंसल्टेंसी कर सकता है, स्टोर में जा सकता है, R&D, प्लांट ऑपरेशन, मार्केटिंग, बहुत सारे काम होते हैं। तो दूसरी बात, शिक्षा का क्षेत्र चुनने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारी पसंद और नापसंद क्या है, हमारी प्रतिभा किस काम में है, हमारी कमजोरी कहाँ है। और इंजीनियरिंग करते हुए लोग MBA करने लगते हैं, कोई दूसरा काम शुरू कर देता है। अरे भाई, अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग में माहिर बनो, पहले भटको मत। दूसरा, हमारे जितने कंपटीशन होते हैं वो हर व्यक्ति की जो क्षमता होती है उसके अनुरूप नहीं होते हैं। अब मान लीजिए एक आइंस्टाइन का एक जोक है कि बहुत सारे पशु पक्षी बैठे हुए हैं सामने उसके, और वो कह रहा है कि फॉर ए फेयर सिलेक्शन एवरीबडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम, दैट इज प्लीज क्लाइंब द ट्री। अब मछली, कुत्ता, हाथी, क्या ये पेड़ पे चढ़ सकते हैं? यही बात हमारे साथ है, हम भी हर काम के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन हम कामना तो कर सकते हैं, सपना तो ले सकते हैं कि हमें गूगल में जॉब करना है, हमें माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है, हमें किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है। यहाँ पर जो प्रश्न उठता है, हमने वहां जब सबसे पहले बात की थी मनसा वाचा कर्मणा, मन से मतलब चिंतन से, हम थॉट हमारा जो है स्थिर होना चाहिए, हमारी डिजायर जो है उसको हम एक्सप्रेस करें कि हमने ये करना है, और फिर उसके लिए कर्म करना पड़ता है। आपने हनुमान जी को कहा कि हम 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे अगर फर्स्ट डिवीजन आ गई तो, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो इसलिए हमें थॉट, डिजायर और एक्शन, मनसा वाचा कर्मणा को अगर मूर्त रूप देना है तो प्रयास करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे में जो भिन्नता हमने अभी बताई आपको, हम हर व्यक्ति हमारा बोर्ड में 100% अंक ले आए, ये संभव नहीं है। इसी तरह किसी कंपटीशन में परसेंटाइल आती हो, ऐसा तो होता है कि मान लीजिए 10 लाख लोग किसी कंपटीशन में बैठे तो उसमें 50 लोगों की परसेंटाइल 100 पर आ गई, 100%, लेकिन सबकी नहीं आ सकती। तो ये हमारा जो भिन्नता हमारे अंदर है। अब एक व्यक्ति, उदाहरण लेता हूं मैं, जैसन आर्डले, ये एक इंग्लैंड का व्यक्ति है जिसको न्यूरोलॉजिकल विकलांगता है, जिसे ऑटिज्म कहते हैं। ये 8 तरह की दिमागी एक विकलांगता है। उसके माँ ने उसको वो 18 वर्ष तक जो है पढ़ लिख नहीं सका, बोलने में भी उसको मुश्किल थी, लेकिन उसकी माँ ने उसको बहुत सहारा दिया, उसको तरह तरह के संगीत में जोड़ा, उसको बहुत सारी उसके रुचियां पैदा करने की कोशिश की, और परिणाम ये हुआ कि 18 वर्ष के बाद में उसने पढ़ने का उसको रास्ता मिला। अब यहाँ पर जो है एक उसको मार्गदर्शक मिल गया, मेंटर। उसने उसकी मदद से उसने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद उसने 2 विषयों में मास्टर्स की, पोस्ट ग्रेजुएट, और PhD भी कर डाली इन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। अब कल्पना कीजिए कि 37 वर्ष की आयु में फरवरी 2023 में ये व्यक्ति जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में प्रोफेसर बन जाता है। हालांकि वहां पर अश्वेत लोगों को इन बातों की सुविधा नहीं मिलती, लेकिन ये एक अश्वेत होते हुए भी और इतना प्रयास करने के बाद में, तो उसने अपने वक्तव्य में कहा कि 10 वर्ष पहले उसने अपने सामने कुछ बातें दीवार पर लिखी थी या बोर्ड पर लिख कर रखी थी। उसमें एक उसका सपना था कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाएगा। और जाएगा मतलब पढ़ने जाएगा या पढ़ाने जाएगा, ये तो बात की बात है, मुझे पता नहीं उसने क्या सोचा था। लेकिन 10 वर्ष पहले जो उसने जो सपना लिया था, एक ड्रीम था उसका, उसको उसने उसकी जो कल्पना की और उस सपने को हमेशा देखता था। तो एक दिन वो वहां पहुंच गया।
इसका मतलब मनसा और उसने प्रयास किया, सिर्फ सपना लेने से काम नहीं बना। उसने जो अध्ययन किया, जो रिसर्च की, डॉक्टरेट की, पीएचडी हो गया वो, और आगे बढ़ गया वो। तो ये एक सुझाव है मेरा बिगिनर्स के लिए, क्योंकि बिगिनर्स में सबसे ज्यादा बेरोजगारी होती है, नौकरी ढूंढना पड़ता है। उनको आवश्यकता है कि बड़ी कंपनियों में तो बहुत सीमित संख्या होती है जहां पर वो जा सकते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो चाहे वो नौकरी हो। इसलिए हमारा ध्यान अधिक माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ, जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, अगर हम उधर करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि कितनी संख्या है इनकी भारत में, 6 करोड़ से ज्यादा। और इन 6 करोड़ में आप ये मान लीजिए कि 10% बहुत ही अच्छे एमएसएमई हैं, जो कोई तो मल्टीनेशनल कंपनी से भी अच्छा आपको वातावरण दे सकते हैं, लेकिन हमारा झुकाव उधर नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर हम एमएससी में प्रशिक्षण लेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, तो इससे हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। हो सकता है हम उनसे न जुड़े, हम किसी एमएनसी में हमको जॉब मिल जाए, तो वहां पर जो एक शिकायत होती है बड़े उद्योगों की कि लोग रोजगार के लिए उपयुक्त नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, सिर्फ डिग्री होने से काम नहीं चलता। तो लघु उद्योग के साथ जुड़ने से एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। तो इस तरह से अब ये मान के चलना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो अगर हमें कोई हमने किसी विषय को चुन लिया, कोई दिशा चुन ली हमने, वहां मौका न मिले अगर हमको, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा नृत्य कर सकता है और उसको अगर स्टेज ना मिले डांस करने के लिए, इसका मतलब अवसर नहीं मिला। तो जो अवसर मिले उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा अब, क्योंकि आजीविका कमानी है ना। तो वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। तो इसीलिए एमएनसी और पीएसयू की हम कल्पना करें, लेकिन आगे बढ़ें, और इसके लिए जरूरत है हमें उद्योग की जानकारी होनी चाहिए। कम से कम बड़े उद्योगों की तो हमें बहुत जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी क्या बनाती है, कहाँ है लोकेटेड है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्या है उसका, उसके प्लांट्स कहाँ कहाँ हैं, कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल होती है, कौन से उपकरण और मशीनरी इस्तेमाल होती हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का क्या इतिहास है, उनकी ग्रोथ कैसी है, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है। अगर मान लीजिए मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली बड़ा नाम देखकर, पता लगा जी वहां तो उस कंपनी में लोगों को जल्दी इंक्रीमेंट ही नहीं मिलते, अच्छे तरक्की के चांस बहुत कम है, नाम बहुत बड़ा है कंपनी का, और ऐसा होता है। तो हमें जानकारी जुटाने के लिए कंपनीज की जानकारी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कम से कम हमें कई, मतलब शिक्षा के साथ साथ ये हमारा शौक होना चाहिए। आप उदाहरण लीजिए, अगर शादी को सफल करना हो तो वर वधु के लोग जो हैं एक दूसरे के परिवार को 1 वर्ष तक, 1.5 वर्ष तक, काफी समय, लंबे समय तक अच्छी तरह परखते हैं पहले। क्योंकि अचानक अगर शादी हो जाए तो कल को पता लगा जी बहुत सी बातें जो हैं वो मनपसंद नहीं थी। तो इसलिए उद्योग की जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए हो, इंटर्नशिप के लिए हो, कैरियर के लिए हो। और ये सब काम न भी हो, कल को मान लीजिए आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं और आपने कोई उत्पाद खरीदना है, तो आपको अगर जानकारी है कि कौन सी कंपनी क्या बनाती है और क्या क्वालिटी है उसकी, तो आप एज ए बायर यू कैन लर्न ए लॉट, यू कैन मेक यूज। आप उसके उपयोगकर्ता हो सकते हैं। मान लीजिए एयरटेल है, आपको एयरटेल और दूसरी कंपनियों की जानकारी अगर है तो आपको चुनाव करना है, आपको पता होना चाहिए कौन सी कंपनी की क्वालिटी क्या है, ग्रोथ कैसी है। मान लीजिए जॉब की बात मत करिए, आपको निवेशक बनना है उनके शेयरों में, तो इसके लिए भी आपको ये पता हो अगर कंपनी कैसी है, तो कंपनी की जानकारी के बाद हमारा ज्ञान जो है काम आता है बहुत से कामों में। और इस मामले में एक निशुल्क पत्रिका उद्योग संचेतना ये काम कर रही है कि किसी न किसी उद्योग के बारे में हम जानकारी देते हैं। अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे इस बारे में, आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ते हैं जॉब्स के लिए। जॉब एक समस्या है। डिग्री का मतलब होता है एक गले में फंदा पड़ गया कि मुसीबत मोल ले ली हमने। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें स्किल डेवलपमेंट की ओर जाना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट पर जाएंगे अगर, तो फिर हम कोई भी डिग्री ले लें उसके साथ में हम कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो इसलिए अब सरकार की नई पॉलिसी में बहुत अच्छी बातें हैं, और उनमें से एक बात है
कि स्कूल के स्तर पर इंटर्नशिप की सुविधा देना। अब बड़े कॉलेजों में तो ये काम चलता है, नाम इंटर्नशिप बहुत कॉमन नाम है। अब आप सोचिए 11वीं 12वीं के बच्चों को अगर इंटर्नशिप दी जाए तो नेचुरली उनका ज्ञान बढ़ेगा उद्योग के बारे में। तो ये एक घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 1 साल पहले की थी कि 11वीं और 9वीं के बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। लेकिन कहाँ भेजेंगे, कौन सी इंडस्ट्री या संस्थान उनको मदद करेंगे, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। तो ये एक मतलब इम्प्लीमेंटेशन इज ए बिग इशू। कौशल विकास की बहुत बात होती है। ITI अलग है, डिप्लोमा अलग है, डिग्री कॉलेज अलग है। अगर कोई आदमी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेता है और नहीं चल पाता तो मान लीजिए साल भर बाद उसको छोड़ना पड़ता है, साल बेकार गया उसका। लेकिन एक संस्थान बहुत अच्छा है, संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसको शॉर्ट में स्लीट कहते हैं। ये पंजाब में एक जगह है लोंगोवाल। वहां पर व्यक्ति का एंट्री होती है स्किल डेवलपमेंट से। कौशल विकास के साथ साथ अगर उसकी उपलब्धता, उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसका सीखने की क्षमता अच्छी होती है तो वो शिफ्ट करके ऊपर जा सकता है ITI में, डिप्लोमा लेवल पे या डिग्री लेवल पर या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। मतलब एक ही संस्थान में सारी सुविधाएं एक साथ। सामान्यतः ITI अलग होती है, डिप्लोमा इंस्टीट्यूट अलग होते हैं, डिग्री कॉलेज अलग होते हैं। अगर इनका एक जगह तालमेल हो कि व्यक्ति एक लाइन में अगर चल सकता है, नहीं चल सकता तो दूसरा काम कर ले। तो अब हम आगे आएंगे, कुछ नॉलेज हमें इंडस्ट्री की होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 दोस्तों की। ये दोस्त कौन है? एक लार्सन और एक टूब्रो। ये तो भारतीय नहीं है, ये डेनमार्क के निवासी थे। जब स्कूल में पढ़ते थे कक्षा 6-7 में तो इन्होंने भारत के बारे में पढ़ा और आपस में सलाह की, यार कभी मौका लगा ना तो भारत चलेंगे। और इसको सौभाग्य कहिए या भाग्य कहिए, ये इंजीनियरिंग करने के बाद में एक ने सिविल इंजीनियरिंग की, एक ने केमिकल इंजीनियरिंग की, और दोनों को एक ही कंपनी में नौकरी मिली, अलग अलग विभाग में, और दोनों को पोस्टिंग भारत में मिल गई। तो 1934 में मिस्टर सोरेन टूब्रो जो है भारत आ गए और उसके बाद उनके मित्र भी आ गए। यहां पर आने के बाद क्या हुआ, वो अलग अलग काम से आए थे। टूब्रो जो था वो सिविल इंजीनियर है और वो आया था छोटी सीमेंट कंपनियों का तालमेल, आपस में मर्जर करना था। 10 छोटी सीमेंट कंपनियों का मर्जर करने से, क्योंकि छोटी कंपनियों का भविष्य नहीं होता, बड़ा बनाने से उनमें एक स्थिरता आती है। और 10 छोटी कंपनियों को मिलाने से पता क्या बना था? एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज, जिसको आप ACC कहते हैं आजकल सीमेंट उद्योग में। उस कंपनी का मर्जर 10 छोटी कंपनियों का हुआ था 1934 में। वो सोरेन महाशय ने किया था। इसी तरह से कुछ काम करने के लिए हमारे दूसरे मित्र आए थे उनके, लार्सन। तो अब हुआ क्या, 1938 में विश्व युद्ध शुरू हो गया। विश्व युद्ध शुरू होने से ये अपने देश वापस नहीं जा सके, फंस गए भारत में। तो कल्पना कीजिए, एक विपदा आ गई, एक थ्रेट, एक मुसीबत, जो हमने चर्चा की थी 4 बातों में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स में। तो यहां पर एक थ्रेट आ गया उनके सामने कि वो देश वापस नहीं जा सकते, और नौकरी भी चली गई क्योंकि यहां सारे काम बंद हो गए उनके। अब क्या करते? उन्होंने दिमाग लगाया कि डेनमार्क में डेयरी उद्योग के उपकरण बनते हैं। वो उपकरण मंगाने शुरू किए और यहां बेचने लगे। फिर उस पर प्रतिबंध लग गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया कि यूरोप से कोई सामान इंपोर्ट नहीं होगा। उन्होंने एक वर्कशॉप लगाई और वहां अपने उपकरण बनाने लगे, छोटी मोटी वर्कशॉप लगाकर। और एक छोटा सा कार्यालय उन्होंने लिया किराए पर बंबई में, जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति बैठ सकता था। मतलब एक संकल्प शक्ति थी, कुछ करना है। ये आत्मनिर्भरता का नमूना है। इंजीनियर हैं दोनों, नौकरी चली गई, मुसीबत आ गई,
तो आत्मनिर्भरता में उन्होंने काम किया। और क्या किया? बंबई में एक एयरपोर्ट है सांता क्रूज, वो सांता क्रूज निर्माण के लिए ठेकेदारी की, सिविल इंजीनियर थे ना। और टाटा का एक प्लांट लग रहा था, सोडा ऐश प्लांट, उसमें टूब्रो साहब को काम करना था, या कुछ और इंजीनियर वहां काम करने आए हुए थे, उनको जर्मनी लौटना पड़ गया, तो उनका काम बंद हो गया, ठप हो गया। इन दोनों ने देखा कहां पर अवसर है, हमने अपॉर्चुनिटी की बात की थी ना, तो ये हर जगह अवसर ढूंढते थे। इनकी क्षमता ये थी, इंजीनियर तो थे, ये हर काम में अवसर ढूंढते थे, कहां मौका मिलता है। इन्होंने कहा जी हम आपका प्लांट लगा देंगे, इरेक्शन कमीशनिंग हम कर देंगे। अभी जरूरी नहीं इनको काम आता था, उस जमाने में तो सुविधा भी नहीं थी। आज तो आप कोई भी काम ऑनलाइन सीख सकते हो, आप इंटरनेट पर सर्च करिए, आपको बहुत सी सुविधाएं मिल जाएंगी। इन्होंने वो काम कर डाला। तो इन्होंने फिर एक कंपनी बनाई, ईसीसी, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब इनको पैसे की जरूरत थी, तो 4 पुराने मित्र मिल गए इनको, सबने 10-10 हजार रुपए की मदद कर दी। देखिए मित्रता कितनी काम आती है। 1945 में इन्होंने विदेशों से, अमेरिका से विशेष करके, बहुत तरह तरह की मशीनरी मंगानी शुरू कर दी, बिस्कुट बनाने की या साबुन बनाने की या और बहुत से काम। तो उस मशीनरी को ये बेचने लगे। उसमें हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी भी आती थी, क्योंकि निर्माण कार्य जहां भी होता था हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी चाहिए, डंपर, बुलडोजर वगैरह वगैरह। करते कराते काम जब बढ़ने लगा तो निवेश की जरूरत हुई, कि पार्टनरशिप कंपनी में काम नहीं चल रहा था। उसके लिए उन्होंने L&T प्राइवेट लिमिटेड बनाई 1946 में, और फिर 48 में लिमिटेड कंपनी बन गई। देखिए काम का विस्तार होता चला गया। आदमी मेहनती हो तो क्या नहीं कर सकता, क्षमता हर व्यक्ति में होती है, अवसरों का लाभ उठाना आना चाहिए। इस कंपनी की 2020 में, आपको कल्पना कीजिए कितनी इसका टर्नओवर था, और ये भारत की नंबर 1 इंजीनियरिंग कंपनी है। आज ये दोनों हमारे देश में नहीं है, स्वर्ग सिधार चुके हैं, लेकिन भारत में L&T, आपको कहीं भी अगर बोर्ड नजर आए तो आप कल्पना कीजिए ये L&T कौन है। L से लार्सन, T से टूब्रो। ये दो दोस्तों की दोस्ती को याद कीजिए और इन्हें श्रद्धांजलि दीजिए। अब हम बात करते हैं एक पुजारी की। पारसियों में एक पुजारी परिवार था। नॉर्मली क्या होता है कि परिवार का जो एक व्यवसाय होता है उसी को बच्चा आगे बढ़ाता है। बड़ा आसान काम है, बना बनाया काम होता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जमशेद जी टाटा मार्च 3, 1839 में पैदा हुए नवसारी में। आपको पता होना चाहिए ये पारसी कौन है, ये पर्शियन है। ये ईरान से भगाए गए थे, पर्शिया इनका देश था, तो वहां से भगाए गए, तो ये कुछ लोगों ने भारत में शरण ली थी, वही लोग पारसी हैं। तो वहां इसका जन्म हुआ, और इसने एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर लिया, शिक्षा मिल गई। वो इंजीनियरिंग नहीं थी, सामान्य ग्रेजुएशन था। और पिता इनके ये जो पैसे की लेन देन करते हैं, क्या कहते हैं उनको, वो स्मॉल मर्चेंट बैंक चलाते थे। मतलब लोगों को लोन देना और ब्याज लेना, ये उनका धंधा था। तो कुछ समय के लिए इन्होंने 2 साल के लिए पिता के साथ उस काम में सहयोग किया और काम सीखा। फिर इन्होंने लगभग 12-15 हजार रुपए की उस समय के हिसाब से शुरू करके ट्रेडिंग शुरू की, ट्रेडिंग कंपनी बनाई। जब ट्रेडिंग कंपनी बनाई तो इनको लगा कि टेक्सटाइल उद्योग में बहुत स्कोप है काम का। तो वहां पर एक पुरानी ऑयल मिल थी चिंचपोकली में। चिंचपोकली एक सबर्ब है मुंबई की। वहां पर उनको एक पुरानी ऑयल मिल गई, तेल मिल।
उसमें लेकर उन्होंने एक छोटी सी टेक्सटाइल मिल लगा ली, अच्छी चल निकली। कुछ समय बाद उन्हें उसका अच्छा मूल्य मिलने लगा, तो उन्होंने सोचा क्यों ना पैसा कमा लिया जाए, हम बड़ा काम करेंगे। उन्होंने उस मिल को बेच दिया और इंग्लैंड चले गए। वहां पर उन्होंने कॉटन ट्रेड के बारे में सीखा। वहां पर जो मशीनरी बनती थी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स के लिए, उनके बारे में जाना। और सब कुछ सोचने के बाद में भारत आकर ये विचार किया कि हम एक टेक्सटाइल मिल लगाएंगे। अब सामान्यतः हमें कोई अगर उद्योग लगाना होता है तो हम सोचते हैं ऐसी जगह लगाया जाए जहां पर ऑलरेडी उस तरह के उद्योग चलते हों। तो बंबई में बहुत उद्योग चलते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत थी। उनका ना थोड़ा दूर हट के चलते हैं, जहां पर जमीन सस्ती हो, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, रेल नेटवर्क हो, पानी उपलब्ध हो, बिजली हो। तो उन्होंने नागपुर को चुना और लगभग 1.5 लाख रुपए के निवेश से उन्होंने वहां पर मिल लगाने की योजना बनाई और काम शुरू कर दिया। जनवरी 1887 में महारानी विक्टोरिया पदासीन हुई, अपने पहली बार अपने उनको राज्य का वो बनाया गया मुखिया। तो 1 जनवरी को जब ये घोषणा हुई कि महारानी विक्टोरिया जो है अब ब्रिटेन की क्वीन होंगी, महारानी होंगी, तो इन्होंने उसके नाम पर ही अपनी कंपनी का नाम विक्टोरिया मिल कर दिया। तो जनाब 37 वर्ष की आयु में वो एक टेक्सटाइल मिल के मालिक बन गए। और उनकी खूबी ये थी कि उस जमाने में वर्कर वेलफेयर के लिए कोई सुविधा नहीं थी, कोई कानून नहीं था कि काम के कितने घंटे होंगे, काम के साथ में कुछ मेडिकल हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बच्चों के लिए कोई शेल्टर होगा कि नहीं होगा। इस तरह की बहुत सी सुविधाएं थी। प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि जिसे कहते हैं, ये भी नहीं, जरूरी नहीं था। तो उन्होंने ये बातें लागू की। उनके दिमाग में ये था कि जो वर्कर काम करता है अगर हम उसका ख्याल करेंगे तो वो ज्यादा मेहनत करेगा। तो इस तरह से उन्होंने जो काम किए, और उसके बाद उन्होंने 3 सपने लिए। उन्होंने किसी से सुना था स्टील इंडस्ट्री के बारे में। अच्छा, उन दिनों में पता है क्या था? उन दिनों में अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी कोई भी भारतीय उद्योग लगाए, क्योंकि वो कच्चा माल यहां से इंग्लैंड भेजते थे और वहां से फिनिश मटेरियल को मंगाते थे। जैसे कॉटन वहां भेजते थे, वहां से कपड़ा आता था। आयरन ओर यहां से वहां भेजते थे, वहां से स्टील आता था। और वो डिस्करेज करते थे कि कोई भी व्यक्ति इन कामों में आगे न बढ़े। लेकिन यहां पर ये जमशेदजी टाटा का संकल्प था कि हम भारत को मजबूत बनाएं। उसके लिए हमारे पास अपना स्टील प्लांट होना चाहिए। तो आज टाटा स्टील है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है उसको टाटा स्टील कहते हैं। जमशेदपुर में पूरा शहर उनके नाम पर है। एक उनका सपना था अच्छा संस्थान होना चाहिए, शिक्षण संस्थान। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर की परिकल्पना जमशेदजी टाटा ने की थी। और एक उनका संकल्प था कि हमारे देश में हाइड्रो पावर स्टेशन होने चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने भी प्रयास किया। लेकिन ये दुर्भाग्य कहिए या जो मर्जी कहिए, 1904 में उनकी मृत्यु हुई तो ये तीनों संकल्प उनके अधूरे थे, ये विचारों में ही रह गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उनके आने वाली पीढ़ियों ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए इन सब सपनों को पूरा किया। और आज आप देखिए, नमक से लेकर हवाई जहाज तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर टाटा नाम नहीं है। टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एयर इंडिया वगैरह वगैरह, 50 काम हैं, शायद आप गिनती नहीं कर पाएंगे। और कितना रोजगार पैदा होता है देश के लिए, कितनी नौकरियां पैदा हो रही हैं, देश कितना तरक्की कर रहा है, जीडीपी को ग्रोथ होती है, सरकार को टैक्स मिलता है। लेकिन ये सपना किसका था? एक पुजारी के बेटे का।
तो अगर हम आगे बढ़ें तो समय कम है, लेकिन मैं एक चर्चा और करना चाहूंगा, और वो है लक्ष्मण राव किर्लोस्कर की। एक कारोबारी, आपने शायद नाम सुना हो, किर्लोस्कर के पंप आते हैं। लेकिन वो पंप सिर्फ छोटे पंप नहीं है, वो बहुत हैवी ड्यूटी पंप बनाते हैं, जिनका इस्तेमाल जो ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है समुद्र से, वहां बड़े बड़े पंप काम करते हैं। अभी शुरुआत कहां से होती है? 1869 में इनका जन्म हुआ था बेलगांव में, कर्नाटक। और इनको शौक क्या था? बचपन में आपने देखा होगा बहुत से बच्चे चौक, खड़िया या कोयला लेकर चित्रकारी करते हैं फर्श पर, दीवारों पर। वही शौक इनका था, लक्ष्मणराव किर्लोस्कर का। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। माता की मृत्यु हो गई थी जब छोटे थे। पिता ने पालन किया इनका बड़ी मुश्किल से। उस जमाने में उनकी 12 रुपए मासिक आय थी, तो कैसे पालन करते थे वो? घर का खाना भी बनाते होंगे, बच्चों को पढ़ाते भी होंगे, समझाते भी होंगे, तैयार भी करते होंगे। लक्ष्मण राव उनमें से एक थे। जब इन्होंने हाई स्कूल किया तो पिता ने पूछा, बेटा क्या बनना है? इन्होंने कहा, मुझे पेंटर बनना है, चित्रकार बनना है। क्योंकि जो खड़िया वाला शौक था ना, ये दीवारों पे चित्रकारी करने का, इनको पता था कि ये पेंटर बनने से वो अच्छा काम कर सकते हैं। और उसके लिए जे स्कूल ऑफ आर्ट्स एक बड़ा फेमस संस्थान है बंबई में, वो उनके सपने में था। उनको जानकारी मिल गई थी कि पेंटर बनने के लिए वहां ट्रेनिंग मिलती है। तो इन्होंने कहा जी मुझे वहां जाना है, लेकिन उसका खर्चा बहुत था। पिता ने बहुत समझाया कि पेंटर बन के तुम आजीविका नहीं चला सकते। जो हम कैरियर की बात करते हैं, कमाने की बात करते हैं, तो कमाई भी तो होनी चाहिए ना। बहुत से पेंटर, बहुत से लेखक, बहुत से कलाकार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पैसा नहीं कमा पाते। तो यही विचार उनके पिता का था कि पेंटर बनकर तुम कलाकार बन सकते हो, लेकिन कमाई नहीं, जीवन कैसे चलाओगे, अपना घर कैसे पालोगे? खैर जी, जिद की उन्होंने, जैसे तैसे उन्होंने लोन लेकर इनको वहां एडमिशन करवा दिया। अब वहां पर जब मेडिकल टेस्ट हुआ कुछ समय के बाद, पता लगा इनको कलर ब्लाइंडनेस थी, पार्शियल। और कलर ब्लाइंडनेस हो, आंशिक रंगों के प्रति आपकी अगर जानकारी में दिक्कत हो, तो आप पेंटर नहीं बन सकते, कि पेंटर का काम ही रंगों से है। वहां पर जाकर उन्होंने, उस संस्थान में एक सुविधा थी कि आप पेंटर नहीं बन सकते तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ लीजिए। उन्होंने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ ली। मतलब जो हमें चाहते थे नहीं मिला, तो मुझे विकल्प के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसी सुविधा हो, जैसा काम मिले। कोर्स पूरा करने के बाद में एक नया इंजीनियरिंग संस्थान वहां बन रहा था, VJTI, विक्टोरिया जुबली टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। उसका नाम बदलकर वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हो गया है। नाम VJTI ही रहता है। तो उस संस्थान में नौकरी निकली ड्राइंग टीचर की। इन्होंने अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू के लिए जब इनको बुलाया गया तो प्रिंसिपल ने कहा, तुम तो बच्चे लगते हो, तुम क्या टीचर बनोगे? लक्ष्मण राव ने जवाब दिया, जनाब मेरी काठी मत देखिए, आपको परीक्षा लेनी, मेरी परीक्षा लीजिए। मुझे ड्राइंग पढ़ानी है तो ड्राइंग आनी भी चाहिए ना। प्रिंसिपल ने उनकी परीक्षा ली और उनको देखा नॉलेज थी, तो उनको असिस्टेंट ड्राइंग टीचर बना दिया। अब ड्राइंग टीचर जो है कितना समय लगाएगा पढ़ाने में? खाली समय में क्या करेगा? गप्पे मारेगा, इधर उधर घूमेगा बंबई में, टाइम पास करेगा? जी नहीं। वो लाइब्रेरी जाते थे और वहां पर कुछ पत्रिकाओं को उनको पढ़ना शुरू कर दिया। उनको अच्छी लगती थी वो पत्रिकाएं, वहां से बहुत सीखने को मिलता था। फिर नया कॉलेज बना था तो वर्कशॉप्स में मशीनें आ रही थी, उनका इंस्टॉलेशन होना था, उनकी पेटियां खुलती थी, उनके कैटलॉग निकलते थे, ये उनको पढ़ते थे। इंजीनियरिंग डिग्री नहीं थी इनके पास, ये सिर्फ ड्राइंग बनाना जानते थे। लेकिन वहां से पढ़ के कि कैसे फाउंडेशन बनती है किसी इंजीनियरिंग मशीन की,
कैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है, वो कैसे काम करती है, ये जानकारी तो वो सीख सकते थे ना। मतलब कहने का ये है मुझे कि शौकिया पेंटर बनने चले थे, बनते गए इंजीनियर अपने समय का उपयोग करते हुए। और ये काम हर व्यक्ति कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हम बीटेक करें आईआईटी में जाकर। आप घर में रहकर या अपने काम धंधे में रहते हुए भी बहुत कुछ टेक्निकल बातें सीख सकते हैं। ये काम किया उन्होंने। फिर एक बार सड़क पर उनको साइकिल दिखी पहली बार, एक अजूबा था। उन्होंने भाई को अपने लिखा बेलगांव में कि भाई मैंने 2 पहिए की गाड़ी देखी है, क्या हम उसे अपने गांव में बेच सकते हैं, कुछ खरीदार मिल जाएंगे, क्यों ना व्यापार किया जाए। भाई ने कहा भेजो। तो इन्होंने, उन दिनों इंपोर्ट करनी पड़ती थी, साइकिलें भारत में नहीं बनती थी, इन्होंने साइकिलें मंगवाई और भाई को भिजवा दी। और भाई बहुत, देखिए, सुविधा का फायदा, अपॉर्चुनिस्ट, मौका परस्त, साइकिल चलाने की वो लोगों को ट्रेनिंग देते थे। जो साइकिल खरीदता था लोगों को चलानी नहीं आती थी, तो चलाने के पैसे लेते थे वो। जैसे लोग आजकल कार ड्राइविंग की पेमेंट करते हैं कार ड्राइविंग स्कूल को, तो वो साइकिल ड्राइविंग करवाते थे। अब एक बार प्रमोशन का मौका आया कॉलेज में, असिस्टेंट ड्राइंग टीचर को ड्राइंग टीचर बनना था, प्रमोशन होना था। तो प्रिंसिपल ने किसी और व्यक्ति को ड्राइंग टीचर बना दिया। तो व्यक्ति की तौहीन होती है। उन्होंने, अच्छा नहीं लगा उनको, उन्होंने रिजाइन कर दिया और भाई के पास चले गए और साइकिल व्यापार में जुट गए। तो अगर आप ध्यान दें तो इस कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है किर्लोस्कर ब्रदर्स। जो साइकिल कंपनी बनी थी, साइकिल का ट्रेड करते थे। जब एक समय आया साइकिलों का बाजार एकदम स्थिर हो गया, जिन्होंने जो खरीदने, जिनकी क्षमता जो खरीद चुके थे, और आगे साइकिलें ज्यादा बिकती नहीं थी, तो फिर अब आजीविका कैसे चलेगी? 2 भाई थे ना। तो जो पत्रिका पढ़ते थे लाइब्रेरी में, उसको इन्होंने सब्सक्राइब कर दिया था 3 पत्रिकाओं को। एक फाउंड्री जर्नल था, एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, एक और थी कोई पत्रिका। उसमें से ढूंढा इन्होंने क्या काम किया जाए। इनको पता लगा कि आजकल विंड मिल बन रही है विदेशों में। इन्होंने एक विंड मिल बना ली और उसको यहां मैन्युफैक्चर करके यहां बेचना शुरू कर दिया। फिर छोटा सा फैब्रिकेशन शॉप लगा लिया। अब आपने देखा होगा फैब्रिकेशन शॉप में लोग कुर्सी, मेज वगैरह, दरवाजे, ये सब फैब्रिकेट करते हैं ना। ये काम किया उन्होंने। छोटा काम है क्या? आपके लिए आज छोटा काम हो, लेकिन लक्ष्मणराव किर्लोस्कर ने और दोनों भाइयों ने ये काम किया। अब सब एक समस्या आई। इन्होंने बैंक में अप्लाई किया 10,000 रुपए लोन लेने के लिए उस जमाने में, और बैंक ने उनका लोन रिजेक्ट कर दिया, किसी भी कारण से हो, लोन नहीं मिला। और दूसरी तरफ जो बेलगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, उनको उस जगह पर कोई कॉलोनी डेवलप करनी थी। तो उन्होंने कहा जी इस इलाके में जितना भी ये काम चल रहा है सबका डिमोलिशन होगा, और डिमोलिशन होने के बाद में कोई आपको ऑल्टरनेटिव जगह नहीं दे रहे वो। तो भाई साहब सड़क पे आ गए ना आप। मुसीबत, थ्रेट हर आदमी जिंदगी में आता है, लेकिन कुछ तो व्यक्ति अपने दिमाग का काम करता है और कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। अब भाग्य की बात देखिए, दोस्ती। इन्हें एक बार कुछ काम मिला था धौंड स्टेट के एक मंदिर के, बहुत बड़ा एक वहां पर वो क्या बोलते हैं स्टैचू था, उसकी प्लेटिंग करनी थी। एक खंबा था मंदिर में, उसकी प्लेटिंग करनी थी। वो काम किया था उन्होंने, और वहां पर राजा के बेटे से दोस्ती कर ली। अब दोस्ती काम आती है ना। राजा का बेटा अब राजा बन चुका था, वो बेलगाम किसी काम से आया था, तो उसको इच्छा हुई अपने दोस्त से मिलूं मैं।
वो इनको मिलने आ गया। और भाई सुनाओ क्या हाल चाल है? लक्ष्मण ने कहा, रावण ने कहा कि हम तो मर गए, लुट गए, हमारी जो वर्कशॉप थी डिमोलिश हो गई या होने जा रही है, बैंक से लोन नहीं मिला, अब हम कहाँ जाएंगे? तो इसे कहते हैं भगवान का अवतार भी होता है ना, तो दोस्त के रूप में होता है कभी कभी। दोस्त ने कहा, उसने अपने हेल्पर को, अर्दली को, असिस्टेंट को बुलाया और कहा इनको अपने राज्य का नक्शा दिखाओ। नक्शा दिखाकर उसने बोला, इनके मित्र ने बोला कि लक्ष्मण राव, तुम बताओ कितनी जगह चाहिए, इस नक्शे पर लाइन लगा दो, और कितना पैसा चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तो भाई साहब लक्ष्मण और किर्लोस्कर ने देखा कि कहां पर रेलवे लाइन बन रही है, वो जगह चुनी, उन्होंने निशान लगा दिया। बहुत बड़ा जंगल था, उनको काफी मेहनत करनी पड़ी सफाई करने में, उनके उनके वर्कर्स को, उनके सब लोगों को मिलकर महीनों लग गए उनको। वहां पर सांप बिच्छू वगैरह, कांटे, झाड़ियां, बहुत कुछ था। तो भाई साहब एक नए उद्योग की नींव रखी गई, किर्लोस्कर ब्रदर्स का एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना, और उस स्थान का नाम है किर्लोस्कर वाड़ी, और वो शायद भारत का पहला इंडस्ट्रियल टाउन है। अब किर्लोस्कर का हेडक्वार्टर चाहे बंबई में हो या पूना में हो, लेकिन किर्लोस्कर वाड़ी इनका जन्म स्थान है। तो इस तरह से अब कहानियां बहुत है मेरे पास, ये हमें प्रेरणा देती हैं, लेकिन मुश्किल क्या है कि हमको राजाओं का इतिहास पढ़ाया जाता है, किसने किस पर आक्रमण किया, किसने क्या किया, किसने लूटा, किसको मारा। उद्योग का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। आवश्यकता यह है कि हर छात्र को उद्योग का इतिहास पढ़ाया जाए, और हम ये काम कर रहे हैं उद्योग संचेतना न्यूज़लेटर के माध्यम से, जो निशुल्क है, जो फेसबुक पर और लिंक्डइन पर उपलब्ध है। मासिक पत्रिका है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, दोनों अलग संस्करण हैं। तो इनके माध्यम से ये सब कहानियां हमने उस पत्रिका में लिखी हैं, और एक पुस्तक मैंने अभी लिखी है, आई कैरियर, मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कैरियर। तो कैरियर में कैसे आगे बढ़ें, कैसे ट्रेनिंग की प्लानिंग करें, इंडस्ट्री की जानकारी के भाई हमने इस तरह के 20 किस्से उसमें दिए हैं। तो ये सब बातें जो हैं, मुझे आशा है आप लोगों को पसंद आई होंगी। और अब मैं क्लोज करने से पहले कुछ 2-3 और स्लाइड स्किप करता हूं, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। एक तो है कबाड़ी से कमाल, अनिल अग्रवाल। अभी अभी जो हमने बात की 3 लोगों की, लार्सन टूब्रो, जमशेदजी टाटा और लक्ष्मण और किर्लोस्कर, ये तो पुरानी पीढ़ी के हो चुके हैं। अनिल अग्रवाल आज की पीढ़ी के हैं। हाई स्कूल के बाद पढ़ने में मन नहीं लगा, मुंबई भाग गए, आज बहुत बड़ा ग्रुप है वेदांता। और एक ये देखिए, ये व्यक्ति जो है शिक्षा से इंजीनियर है। इसने एक किस्सा पढ़ा अखबार में कि सड़क में गड्ढे में गिरने से एक स्कूटर चालक लड़की की मृत्यु हो गई। तो सड़कों में गड्ढे नहीं होने चाहिए ना, सरकार का काम है, किसी प्राइवेट व्यक्ति का काम तो नहीं। हम सरकार को टैक्स क्यों देते हैं? इसको और इसको एक मित्र को, जो पीएचडी है मैनेजमेंट में, इन्होंने एक कंपनी बनाई, पॉट होल राजा। सड़कों के पॉट होल, गड्ढे भरने का काम करते हैं, उसमें लोगों से दान भी लेते हैं, कंपनीज के सीएसआर फंड्स भी लेते हैं, और कुछ बिजनेस का काम भी करते हैं। तो सोचिए, सोचा क्या था, इंजीनियर बने थे, 3 साल तक आईटी कंपनी में काम किया सॉफ्टवेयर का, और अब सड़कों के गड्ढे भरते हैं। तो सवाल नौकरी का और स्वरोजगार का नहीं, सवाल संतोष का है, सेटिस्फेक्शन का है। और अब आप देखिए, ये आत्मनिर्भरता का नमूना है। भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? भारत के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ये व्यक्ति दिव्यांग है,
पैरों से, इसके पास ट्राइसिकल है और ये गली गली घूमकर झाड़ू और ये वाइपर वगैरह बेचता है। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मनिर्भर बनना है तो हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर ये सोचे कि सरकार इसकी मदद करेगी, सरकार इसको कुछ दान देगी, डोल देगी, तो ये वो भी काम कर सकता है। सरकार आजकल अन्न देती है फ्री लोगों को, गरीबों को, तो ये उस पर भी निर्भर रह सकता है कि खाने का काम तो चल गया, चलो मैं भीख मांगता हूं या कुछ और काम करता हूं। तो जनाब, इस तरह से हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। ये देखिए, टूरिज्म की बात होती है तो बहुत सारे अवसर बढ़ रहे हैं, नौकरियां भी बढ़ेंगी। और ये देखिए, एक नाथद्वारा में स्टैचू बना है शंकर जी का, 379 फीट ऊंचा। अब फूलों की खुशबू, हर वेस्ट मटेरियल उपयोग हो सकता है। तो एक सब खबरों से मिला है मुझे, मैं रिसर्च करने नहीं गया किसी संस्थान में या किसी जगह। तो आप भी अगर खबरें पढ़ें, आप भी खबरें पढ़ते होंगे, तो धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। और धन्यवाद अजय जी का मुझे अवसर देने के लिए इस काम में आज। अजय जी, अगर कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। और अगर प्रश्न नहीं है तो कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। हेलो, अजय जी। हेलो, हेलो। यस सर। मेरा वक्तव्य पूर्ण हुआ। जी। कोई प्रश्न हो तो हाजिर हूं। तो जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं वीरेंद्र जी से। अगले 15 मिनट हम लोग अपना, वीरेंद्र जी सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। कोई भी बंधु अपना कोई सवाल। हेलो। हाँ जी, बताइए अंसारी जी। जी सर ये कह रहे हैं कि आईटी के फील्ड में अगर कोई बिगिनर्स है तो उसके लिए किस फील्ड और किस कंपनी के लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी? दोबारा बताएंगे? आईटी फील्ड के लिए कोई अगर स्टूडेंट आईटी से रिलेटेड है और वो बिगिनर्स है तो उसके लिए कोई क्या सर्टिफिकेट कोर्स अपॉर्चुनिटीज हो सकती है? आज की ट्रेंड में जो सर्टिफिकेट कोई कोर्स जिससे उसे आसानी से जॉब मिल सके एमएनसी कंपनी वगैरह में? देखिए, एमएनसी की बात छोड़ दीजिए, जी। कंपनियां तो सैकड़ों नहीं हजारों में हैं। जी। तो हम, हर आदमी ये ना सोचे कि मुझे किसी बड़ी कंपनी में जाना है। बड़ी कंपनी में आपको व्यक्तिगत उसमें पर्सनल टच नहीं मिलेगा। जी। आप ये कोशिश कीजिए, आपका कोई परिचित मित्र अगर किसी छोटी कंपनी में भी काम करता है, नोएडा में, गाजियाबाद में या कहीं भी,
हो सकता है आपके नजदीक ही हो कोई, जी उसकी मदद लीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। जी सीधा जो है एमएनसी की बात मत करिए। जी जी मौका मिले तो अच्छी बात है, लेकिन सीधा एमएनसी की बात ना करके जी छोटी इंडस्ट्री का बात कीजिए। जी जी सर। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। और कोई? किसी का कोई प्रश्न? प्रशांत जी, प्रसून जी, मानसी? नो सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, थैंक यू। So, sir, thank you very much for your precious time. And I think what you have spoken is not available in many motivational speech also. The way you have explained it, it was very nice. मैं लार्सन ट्यूब्रो के शेयर जो है 1991 से खरीद रहा हूँ, लेकिन मुझे लार्सन ट्यूब्रो कौन है ये नहीं पता था। अच्छा अच्छा। मुझे पहली बार ही पता लगा कि हाँ। लार्सन ट्यूब्रो कौन है। उनके शेयर मैंने सबसे पहली बार 1991 में खरीदे थे। मतलब आप समझिए 31 साल हो गए खरीदते हुए। हाँ। जानने की कोशिश भी नहीं की और कोई ऐसा मौका भी नहीं आया कि मैं जानूं। और इतनी बड़ी कंपनी है, मतलब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की शायद ये अपनी फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में। और चूंकि मैं रेलवे इंजीनियरिंग के कोर्सेज कर रहा हूँ, हाँ। तो रेलवे के जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, नहीं सिर्फ ये सिविल इंजीनियरिंग नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल में भी है, ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी है। मैं यही कह रहा हूँ कि हाँ। रेलवे इंजीनियरिंग की भी ये सबसे बड़ी कंपनी है। मतलब जो इसकी जितने एक पूरी कंस्ट्रक्शन हो किताब रहे हैं। बन सकती है परिचय कराने के लिए। जी हाँ। तो अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर जो है जी अमन चौहान का है, मैं अभी स्टूडेंट हूँ और मेरा ड्रीम है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना। जी 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 प्लीज तो इसका मैं उदाहरण दूंगा। प्लीज। बहुत छोटा सा काम है। अपने घर के आसपास कोई समस्या ढूंढिए। राइट। आजकल गीला सूखा कूड़ा सरकार कहती है अलग अलग दीजिए, लोग देते नहीं। राइट। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हम लोगों से फल सब्जी के छिलके इकट्ठे करते हैं कि लोग उसे कूड़े में न फेंकें, और हमें निःशुल्क सेवा देते हैं पिछले 10 वर्षों से। तो ये काम जो है बिजनेस बन सकता है। इस तरह के बहुत सारे काम हैं, छोटे छोटे काम हैं। हम घर के आसपास कोई काम सेवा के रूप में करना शुरू करें तो उससे हमें जानकारी होगी कि उस काम में कितना पोटेंशियल है। क्योंकि देखिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। राइट। आपने देखा होगा कि दिवाली या होली या ईद के मौके पर बसों में कितना बुरा हाल होता है, लोग लटक के जाते हैं, छत पर बैठ के जाते हैं। राइट। तो क्यों ना हम एक समूह बनाकर 5-7 लोगों का ये कोशिश करें कि हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। एक ऐप बन सकता है। अभी एक मित्र कह रहे थे हमारे एक आईटी कंपनी का, भैया ऐप बनाने की आजकल तो लोग घर बैठे बना लेते हैं ऐप, तो किसी बिना कंपनी में गए हुए। तो एक ऐप बनाकर आप लोगों की मदद कर सकते हैं कि कैसे हम ट्रांसपोर्टर्स को, सरकारी रोडवेज को, प्राइवेट कंपनियों को कैसे जोड़ें कि हर आदमी सुविधा से जो है रजिस्ट्रेशन करके यात्रा कर सके। और फिर हम लोगों से 5 रुपए लेना शुरू कर दें, 10 रुपए लेना शुरू कर दें, तो बिजनेस हो गया। मतलब बहुत छोटी बात है। अगर सड़कों के गड्ढे भरने का काम बिजनेस बन सकता है, तो कूड़ा इकट्ठे करने का काम भी बिजनेस बन सकता है। इंदौर की एक कंपनी कबाड़ी वाला है, आप ढूंढिए कबाड़ी वाला इंटरनेट पर। आज 6 शहरों में उनका काम चल रहा है, लखनऊ में भी है मेरे ख्याल से कबाड़ी वाला। आप उन्हें फोन कीजिए, उनकी ऐप पर आप डालिए आपको क्या आइटम बेचना है, वो आपके घर पे आ जाएंगे लेने के लिए। सर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को कबाड़ बेचना अपने आप एक बड़ा भारी बिजनेस है जी। और इसमें जो कबाड़ इकट्ठा होता है उसकी रिसाइकलिंग, उससे भी बड़ा बिजनेस है। बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है समाज के लिए। जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड और ये फोन के जो ये सब निकलते हैं, और इसके अंदर तमाम सिल्वर होता है, गोल्ड होता है और तमाम बहुत ज्यादा, तरीके के बहुत मेटल्स ज्यादा। होते हैं। तो इनको निकालने का काम एक नेहरू प्रेस में बंदा है,
हाँ जिसकी शॉप में मुझे जाने का मौका मिला, मैंने देखा उसके पास 600 सिस्टम पड़े हुए थे। मैंने कहा देखिए भाई तुम ऐसा क्या है, करते हो? इनका कलेक्शन भी बिजनेस है। हाँ, मैंने उससे तो पूछा, मैंने एक एक तुम्हारे यहाँ कंपनी यार इतने गुड़गांव ये की है सिस्टम पड़े, करो ये क्या कर संभव, रहे हो? कंपनी एक है गुड़गांव की करो संभव, उनका यही काम है। और मैं उनसे जुड़ने वाला हूँ। जो हमारी रिक्शा चलती हैं गाय की रोटी और उसके लिए, तो हम लोगों से छोटे छोटे सामान डोनेशन मिलेंगे, और उससे अगर हमें रीसेल होगी हमारी, तो हम अपनी रिक्शा को ई रिक्शा में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने एक ई रिक्शा बनाई है, अब और 2 रिक्शा हमारी ऑर्डिनरी चलती हैं। तो ये हमारा काम है, क्योंकि हमारा तो नॉन प्रॉफिट काम है, लेकिन ये प्रॉफिट का काम भी हो सकता है। और किसी को कोई अगर व्यक्तिगत सलाह चाहिए तो आप मेरा नंबर इनको दे दीजिए, लोग मुझे बिल्कुल मिल भी सकते हैं, मेरे से बात भी कर सकते हैं। और बिल्कुल। हमारे काम को देखकर हम बहुत सारे आइडियाज हैं। हम देखिए लोग का ये जो वेबिनार की जो शुरुआत की मैंने, उसका जी जो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम जी लोगों के साथ हैंड होल्डिंग करें, हम लोगों को सलाह मशवरा दें, हैंड होल्डिंग करें, और जहां तक हम उनकी मदद कर सकते हैं, जहां तक हम उनको लेके जा सकते हैं, वहां तक हम उनको लेके चलें। तो जैसे मैंने बताया, रज्जू भैया स्मृति संस्थान जो है वो बेसिकली यही काम कर रहा है कि यंग लोगों को डायरेक्शन देना और उसके बाद उनकी हैंड होल्डिंग करना। हमको तो इस योजना को अलग अलग स्कूलों में ले जाना पड़ेगा, जी अलग अलग कॉलेजेस में ले जाना पड़ेगा। जो बात मैंने आज वेबिनार में की है, बहुत से लोगों को समय नहीं मिला होगा, या लोगों को लगा नहीं होगा कि शायद कुछ काम की बात हो, हाँ, और एक घंटा बहुत लंबा हो जाता है। नहीं लंबा लंबा नहीं हो जाता सर, ये प्रायोरिटी की बात है। 3 घंटे हाँ, सिनेमा देखते हैं ना। तो अगर हम स्कूलों में जाने की बात करेंगे, तो स्कूल के विद्यार्थी अगर इकट्ठे होकर बैठेंगे 100-500, तो शायद हम बात को उनमें से हमें शायद अगर सौ नहीं नहीं, पांच सौ हम हम तो चार हम पांच निश्चित रूप से सर इसको काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी इसकी एक योजना मैंने बनाई है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा ठीक इसको है हम लोग कैसे ले जाने वाले हैं। ठीक है। और कोई सवाल अगर किसी का है तो भाई पूछ ले सकते हैं, हम लोग 5 मिनट का समय और हमारे पास। जी प्रणाम सर। सर मेरा कोई सवाल नहीं है, बस इसी से रिलेटेड बात करना चाह रही थी। हाँ बताइए। सर बच्चों में, स्टूडेंट्स में एक तरीके का झिझक या शर्म देखा जा रहा है ये कहने में कि मुझे अपना कोई कुछ स्टार्ट करना है। यहाँ तक कि कॉलेज, जैसे मेरा कॉलेज है बदलापुर में, बदलापुर जौनपुर। तो अभी मैंने जितने भी क्लासेस में एक्सप्लोर किया है बच्चों से कि आपकी हॉबीज क्या है या आप क्या बनना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, तो उन लोगों का यही कहना है कि ज्यादातर उसमें अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो 35 बच्चे ये कहेंगे कि मैं टीचर बनना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो पता नहीं वो ये सोच के बोलते हैं कि हाँ मैडम असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उनके सामने नहीं कहा जा सकता कि हमें कोई एक नया स्टार्टअप करना है, एक दुकान खोलनी है, कुछ नया करना है। तो ये चीज जो आप सोच रहे हैं कि कॉलेजेस लेवल पे इसको ले जाया जाए और स्कूल में, ये बहुत अच्छा प्रयास है सर, आपने बहुत अच्छे से तमन्ना, आप एक काम कर सकती हैं, जी अगर आप कॉलेज में बात कर लें, और जी ये बीरेन जी जो है गाजियाबाद में ही रहते हैं, तो जी आप इनको इनवाइट कर सकती हैं, ही कैन गिव 2 आवर्स टॉक देयर टू जी द स्टूडेंट्स। तो जी अगर सर आप अपने यहाँ प्रिंसिपल को बात कर लें और अगर जी ये संभावना बन जाए तो आप बताइए, एंड वीरेन जी भी बात करेंगे, और अगले 15 दिन मैं भी हूँ गाजियाबाद में, नोएडा में, तो मैं भी आऊंगा साथ में। सर मेरा कॉलेज जौनपुर में है। अच्छा, आपका जौनपुर में है? जी कहीं भी हो हम तो जाने को तैयार तो ऐसा है कि जौनपुर, हमारे पास जौनपुर में भी स्पीकर है, उसकी कोई जी दिक्कत सर नहीं है, हम जौनपुर में भी करवा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं भी जौनपुर जा सकता हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश जौनपुर में वीरेन जी भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली आसपास बात नहीं। एनसीआर में कहीं भी जाना हो, उसके लिए हाँ मैं हाजिर हूँ। बिल्कुल, तो वीरेन जी भी आ सकते हैं। और ये अपने पास अंसारी जी है बदलापुर के। सर हम दोनों सेम कॉलेज के हैं सर। तो ये बदलापुर तो नोएडा में है, ये नो उसमें क्या नाम है, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। नहीं सर, बदलापुर ये यूपी की बात हो रही है सर, उत्तर प्रदेश की। हाँ, बदलापुर यूपी में है। जी वहां पर के एक दिनेश शर्मा है, उनको मैं जानता हूँ, और वो तो ग्रेटर नोएडा में है। जी सर, वो बदलापुर है, नोएडा में भी एक बदलापुर है, लेकिन एक बदलापुर ये जौनपुर में है जहाँ से हम, और अच्छा नोएडा में। अच्छा, ठीक है ठीक है जी ठीक है। तो अगर आप अपने यहाँ ये बात करें तो हम आपके लिए जरूर कोई ना कोई एक स्पीकर आपको देंगे, 2 घंटे 3 घंटे का, और आप कहेंगे तो वर्कशॉप भी करवाएंगे। अच्छा, हम लोग एक बिल्कुल काम सर। और कर सकते हैं जी सर, इससे रिलेटेड क्या है कि देखिए, सब बच्चों की प्रतिभा अलग अलग है। कोई जी बच्चा सर बोलने में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा हाथ से काम करने में बहुत अच्छा है। तो इसका हम लोग एक टेस्ट भी करते हैं। हम जी जी आपको एक ऑटोमेटेड टेस्ट, कंप्यूटराइज टेस्ट दे देंगे,
जिसको लॉग इन करके बच्चा टेस्ट कर सकता है और उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज है, क्या काम वो अच्छा कर सकता है, इस बात के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। तो इस बात के लिए भी आप हमें बता सकते हैं, अगर आपका कॉलेज तैयार हो तो हम आपको मुफ्त में जी तो कंप्यूटर पर अपनी पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए और हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं उनको जी। कैसे हम बढ़िया करें, अच्छा करें, तो ये भी हमारे साथ संभव है। जी सर। ठीक है, तो जी आप टच में रहिए, आपने नंबर नोट कर लिया होगा। और जी। ये अभी आज जो वीडियो किया गया, जो आज ये हमारी रिकॉर्डिंग हुई है, इसको हम लोग अपने चैनल पर डालेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस चैनल पर दोबारा आप इसको देख सकते हैं। कोई बात छूट गई हो, कोई बात रह गई हो, तो वो आप उसमें दोबारा कर सकते हैं। और बीरेन जी, हम लोग सब लोग अवेलेबल हैं आपके बच्चों की मदद करने के लिए, जिस सर तरीके से। एक बार नंबर रिपीट कर हमारे दें तो पास सर यही टारगेट है बहुत कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको कैसे हम दिशा निर्देश दे करके और हैंड होल्डिंग करके, केवल दिशा निर्देश नहीं कि केवल बातें बता दी और चल पड़े, हम जी। उसके साथ हैंड होल्डिंग भी करेंगे उसको आगे ले जाने के लिए। जी सर। ठीक। जी सर, बहुत अच्छा ये प्रयास है सर, इसके लिए बहुत अच्छा। जी हाँ। जी जी सर, अनिल एक जी, बार आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नंबर एक बार सर रिपीट कर दें जरा। मेरा नंबर है 981111 जी 3345। आप हमें पहले व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो कई बार अननोन नंबर में जरा कम उठाता हूँ। कारण क्या है कि मेरे पास मार्केटिंग की कॉल बहुत आती है, मेरा नंबर बहुत पुराना है। बिल्कुल, मैं अंसारी सर करके मैसेज कर दूंगा सर। आप मैसेज कर दीजिए और हम लोग आपके साथ बिल्कुल इसमें कनेक्ट रहेंगे ग्रुप में। वैसे आपका नंबर हमारे पास आ गया, आपने रजिस्ट्रेशन किया है ना? जी 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 तो सर। आपका जी नंबर हमारे पास आ गया है। हम अभी इसका एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। हम जितने भी वेबिनार करते हैं उसका एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और उसमें वीरेन जी का नंबर भी रहेगा, आपका नंबर भी रहेगा। तो आप वीरेन जी के नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस तरीके के वेबिनार आयोजन के लिए। बिल्कुल। और हम लोग ये वेबिनार हर सैटरडे को करते हैं शाम को 6 बजे। तो जी आप जी कभी भी कोशिश आकर के रहेगी अपना सर, हम वेबिनार लोग जो हर है, सैटरडे अगला जुड़ेंगे। वेबिनार भी आप अटेंड कर सकते हैं। सारे वेबिनार हमारे इससे संबंधित है। एक और आपको बात बताता हूँ, अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें लाइफ स्किल के लिए उन्होंने क्रेडिट शुरू कर दिया है, जिसको बिना पढ़े अब आपको डिग्री नहीं मिलेगी ग्रेजुएशन। बिल्कुल। तो उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग अभी उसके ऊपर वेबिनार भी करेंगे और कुछ कोर्सेज भी करेंगे, लाइव कोर्सेज भी करेंगे। ठीक है। हाँ, तो आप टच में रहिए और ये आपके पास आपका ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप में आप टच में रहिए, कोई समस्या है, कोई चीज है, तो आप ग्रुप में हमको कांटेक्ट कीजिए। ठीक है जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। अनिल जी, कोई आपका प्रश्न? हाँ जी। अनिल जी, आप म्यूट हैं, जरा आप अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, हाँ, इसीलिए आवाज नहीं आ रही। जी जी जी। हाँ, आज आपके साथ अभी हमने देखा वो, तो हमने कहा लो शामिल तो हो जाएं कम से कम। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो चलिए अनिल जी, चलिए। अपना आजकल यही एक प्रोग्राम चल रहा है 3 महीने से, हाँ हर हाँ सैटरडे को, है ना? और कोई नहीं, ना अब कोई साथ में आते हैं। अच्छा, आज वीरेन जी का था प्रोग्राम, आप हाँ बात हाँ लेट हाँ जुड़े होंगे। हाँ, अब नवोदय के कार्य से मुक्त हो गए हैं। अच्छा। हाँ, तो अभी सब आपके काम, अब हम मीटिंग अटेंड करेंगे। ठीक ठीक ठीक। तो हाँ। ये वीरेन जी अपने IIT कानपुर के ही पढ़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। आजकल गाजियाबाद में रहते हैं। हाँ उपलब्ध है, कहीं पर भी कोई भी टॉक करने के लिए, जाने के लिए उपलब्ध है। और उद्यमिता, उद्योग और इनके बारे में ये काफी काम कर रहे हैं। लिखा पढ़ी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित कर चुके हैं। और अच्छा, इनका एक सर, आपका जो वो आता है, वो क्या नाम है उसका? पत्रिका उद्योग पत्रिका जो संचेतना। आती है आपकी, उद्योग संचेतना संचेतना फेसबुक पर है और लिंक्डइन पर है जी। तो निशुल्क। तो सर जो है उसके ऊपर पूरा हर महीने मंथली है वो? जी हाँ, मासिक है। मासिक पत्रिका है जिसके ऊपर उद्यम और उद्योगों से रिलेटेड बहुत सारी बातें रहती है। चलिए, तो ठीक। मैं तो बहुत मोटिवेट हुआ आज सर का मैंने वक्तव्य सुना। हाँ एंड आई एम हाँ, रियली फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। चलिए, बहुत अच्छा। तो वीरेन जी, थैंक यू सो मच फॉर धन्यवाद योर जी। प्रीशियस टाइम। आपको इतने सारे आपके पास समय का प्रेशर रहता है, फिर भी आपने 1 घंटे का समय दिया बच्चों को। मेरा समय इसी काम के लिए है। जी जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जरूर आपके साथ जो है आपके समय का और उपयोग करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा। नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।